Hello and welcome to the English News Bulletin of Indian News. I am Yashovardhan Umak, your news presenter. The truth is our priority. We give justice to your curiosity. The latest news spotted only here on Indian News, giving you the latest and most credible news for today. Let's see today's headlines. Union Minister Amit Shah will inaugurate the Yatra from Dantewada. CM Shivraj inaugurated Nagori solar plant. US President coming to India on 3-day visit. So coming back to the news, Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan reached the world tourist destination Sachi on Wednesday, where he inaugurated the solar plant in the state's first solar city. In a program organized at Amkheda Stadium near Sachi, CM Shivraj Singh Chauhan inaugurated a 3 MW solar plant in Solar City at the cost of 18 crore 75 lakhs. It is being told that CM inaugurated the Solar City plant located on the hill of Nagori from the viewpoint built on the Sachi Stupa. During this, the Chief Minister observed through binoculars the solar plant installed on the hill of Nagori built on the Sachi Stupa. सूरज जीवन है, सूरज ना हो तो सृष्टि ना हो। सृष्टि का आधार है सूरज, क्योंकि यह सूरज है जिसके कारण वर्षा होती है। मेरी बहनों और भाइयों, किसान भाइयों, कई दिन से वर्षा नहीं हो रही थी, 1 महीने से ज्यादा हो गया था। परसों मैं महाकाल महाराज की शरण में गया और यही प्रार्थना की कि प्रभु कृपा की वर्षा कर दो, ताकि किसानों के खेतों में फसलें लहलहा जाए, पानी आ जाए, बारिश हो जाए। और कल से बारिश जारी है। किसान भाइयों, ये बारिश भी सूरज के कारण होती है। समुद्र का पानी भाप बन के आता और बरसता है। सूरज ऊर्जा का अक्षय भंडार है। सूरज सृजन है, सूर्य शाश्वत है और सूर्य ही सनातन है। कुछ लोग आजकल सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, क्या वो सूरज को भी खत्म कर सकते हैं? मेरे बहनों और भाइयों, आज का कार्यक्रम कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, ये अत्यंत गौरव का विषय है। देश का पहला शहर है सांची जो सोलर सिटी घोषित हो रहा है। मतलब ताली बजा के स्वागत करोगे। और सोलर सिटी का मतलब हम अपनी ऊर्जा की, अपनी बिजली की जितनी जरूरत है वो सूरज से ही बिजली बनाकर पूरा करेंगे। US President Joe Biden is coming to India tomorrow on September 8th on 3-day visit. He will participate in the G20 summit here. Joe Biden, who is coming to attend the G20 summit, will be accommodated at ITC Moyer Hotel in Delhi. America's Secret Service team has reached India 3 days in advance for Biden's security. It is being told that Biden will be under the security cover of 300 commandos of the Secret Service. Biden will go to the G20 summit sitting in the world's safest car, the Beast. The ideal of Lord Krishna was blessed on Krishna Janmashtami in Junwani Basti of Bhilai. The chief guest of the ceremony was Bhilai's District Congress President Mukesh Chandrakar. A grand Kalash procession was also taken out on this occasion, in which a large number of women, men and children participated in the procession. The folk dance trophies presented to Raut Nacha, which enthralled everyone. Chief guest of the ceremony, Bhilai District Congress President Mukesh Chandrakar said that the Bhupesh government is doing a better job to the direction of saving the folk culture. सबसे पहले तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से संपूर्ण पूरे शहर वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज इस पावन मेला में हमारे जुनवानी के मंदिर में राधा कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित किया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में आज एक लंबी शोभा यात्रा बहुत ही शान के साथ यहाँ शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि अभी शीतला मंदिर तक चलेगी। उसके पश्चात बाकी पूजा पाठ प्रारंभ हो जाएगा। पूजा पाठ कल तक चलते रहेंगे। कल तक BJP's National Vice President and Rajya Sabha MP Saroj Pandey held a press conference at BJP Ektam Complex. Saroj Pandey asked 9 questions to National Congress President Kharge, who was on a tour of Chhattisgarh. He asked Kharge why the congressmen visiting Bharat Jodo Yatra have any objection to the word India.
Why is Congress giving protection to those who serve poison, insult Sanatan Dharma and rape women and tribal in the state? He also raised question on prohibition of liquor in the state of huge wealth found in the hands of the officials. सनातन धर्म पर आघात करना और वोट की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, ये कांग्रेस का पुराना शिकूफा रहा है। इन्होंने अभी एक घमंडिया गठबंधन बढ़ाया है। उस गठबंधन का एक घटक दल डीएमके भी है और डीएमके के बेटे स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने सनातन धर्म पर खुला आघात किया, वो उस गठबंधन के अंग हैं। तो मैं इस विषय पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये पूछना चाहती हूँ कि सनातन धर्म का अपमान करने वाले उदयनिधि स्टालिन का समर्थन आपके बेटे ने भी किया। इस पर क्या आप माफी मांगेंगे या आप अपने बेटे को पार्टी से निष्कासित करेंगे? ये अपेक्षा है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन विषयों पर अपनी बात को स्पष्ट करेंगे। Now it's time for the quick break. Keep watching Indian News. सर्व सुविधा युक्त महिमा हॉस्पिटल उदय, जहां होगा आपका विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा बेहतर इलाज, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बीपी, शुगर एवं हृदय रोग, चर्म रोग, गुप्त रोग, कान नाक गला संबंधित रोगों का 24 घंटे इलाज, घर पहुंच, एम्बुलेंस की सुविधा। पता मेन रोड उदय, संपर्क 07782673711, 9907127097, 9285005609। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना। मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात, वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है, वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो IT स्कूल है कहाँ? इंडो IT स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई। फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkheart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. जो रोजगार दिलाए।
कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। Welcome again after the break. Let's get back to the news. Bharatiya Janata Party is going to start Parivartan Yatra from Bastar on 12th of September, which will be started from Dantewada, the holy place of Ma Danteshwari. BJP leader Kedar Kashyap say that to overthrow the Congress government from Chhattisgarh, Parivartan Yatra will be started from Bastar, which will be inaugurated by Union Home Minister Amit Shah on September 12. BJP leader Kashyap said that the Parivartan Yatra would bring the general public in favor of the BJP so that the congressmen could be defeated in the upcoming assembly election. He shared the outline of the Parivartan Yatra with the journalists. 12 तारीख से हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के इस पावन धरा से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और इसमें हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी इस यात्रा को हरी झंडी देंगे। उसके साथ साथ 16 तारीख को भी जसपुर के कुड़िया रानी के माता के जी के दरबार से दूसरी यात्रा प्रारंभ होगी, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी उस यात्रा को हरी झंडी देंगे और दोनों यात्रा मिलाकर के लगभग 2987 किलोमीटर इसमें यात्रा में चलेगी और इस यात्रा में हमारे कई आम सभाएं होंगी, कई बड़ी सभा होगी, कई स्वागत सभा होगा, कई हमारे रोड शो होंगे, कई हमारे मोटरसाइकिल यात्रा होगी। इस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का तय किया गया है। Due to heavy rain and lack of drainage system, the Akashganga commercial complex has become inundated with water. Shopkeepers have suffered losses worth rupees lakhs due to waterlogging in many shops here. Supela's Akashganga commercial complex located next to the under construction underbridge is waterlogged with rainwater. Goods are floating in water due to knee-deep water in many shops. The waterlogging situation in Akashganga is caused by an underbridge under construction. Shopkeepers say that water has entered the shop due to the municipal administration not restoring the drainage system while building the underbridge. Shopkeepers have restored losses worth rupees lakhs due to the waterlogging in their shops. The shopkeepers have demanded immediate arrangement for drainage. दुकान के अंदर में पानी आपके सामने में दिख रहा है, कितना पानी भरा हुआ है, पूरा घुटनों के अंदर तक मेरा पानी है। दुकान के अंदर में, मेरी दुकान के अंदर में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। पूरे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, समझे ना, मिक्सी, आरओ पूरे पानी में तैर रहे हैं एकदम ही। आज ये कंडीशन है, आप जाकर के देखिए, तैरते हुए देखिए जाकर के कि क्या कंडीशन है। मेरा लाखों का नुकसान, इसका भरपाई कौन करेगा? कितनी परेशानी हो रही है। आज जो है ना ये अंडरब्रिज बन रहा है, आज कितने दिनों से काम बंद पड़ा हुआ है, उसका कोई भी आदमी नहीं देख रहा कि कैसे कब चालू होगा, कब चालू नहीं होगा। इतनी परेशानी हो रही है, पूरा नाली बंद है, आगे में ना पानी निकासी हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ये अंडरब्रिज की वजह से पूरा देखिए पूरे मार्केट का हाल क्या हो गया है, एकदम इतना बुरा हाल हो गया कि बस कुछ पूछो मत। एकदम आप अभी ये दृश्य में देख रहे हैं, पीछे पूरा आकाशगंगा परिसर में पानी भर गया है। उधर कोई अपना अंडरब्रिज जो बन रहा है उससे भी पानी आ रहा है, पानी निकासी की बराबर व्यवस्था नहीं है और पानी का ये जो प्रवाह है निरंतर बढ़ते जा रहा है। तो जो बची हुई दुकानें हैं वो भी चिंतित हैं कि कहीं पानी अंदर नहीं घुस जावे। प्रशासन को इसमें तुरंत हस्तक्षेप करते हुए, प्रयास करते हुए इस पानी को निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। Bajrang Dal protested by burning the effigy of Tamil Nadu Sports Minister Udayanithi Stalin in Bemetra over his statement of abolishing the Sanatan Dharma. Tamil Nadu CM
minister's son, Udayanithi Stalin, had given a statement to completely abolish Sanatan Dharma. Stalin's controversial statement has created an atmosphere of anger among the people who believe in Sanatan Dharma. In this series, Hindu organization Bajrang Dal burned the effigy of Udayanithi Stalin in Bemedra and demanded registration of FIR against him. तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन जो कि टीएमटी के नेता हैं, उनके द्वारा अभी हाल में ही एक बयान आया है। उन्होंने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बताते हुए, कोरोना जैसे वायरस बताते हुए उनको खत्म करने की बात कही है, जो कि बयान काफ़ी विवादित है। इनसे हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश का माहौल है। लगातार पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है। कल हमारे प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश के नेतृत्व में कल दुर्ग में और रायपुर में कोर्ट में भी इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दर्ज किया जाएगा। उसी कड़ी में आज बेमेतरा में पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। And that's all for today. Keep watching Indian News. Thank you and have a great day. And happy Krishna Janmashtami. इस बुलेटिन के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण।